Yes, Vaishali, good morning. So, Dilaiksha, है ना? So, very sorry for this inconvenience. This is your first class and you are facing these type of challenges. है ना? But it's okay, है ना? चलता है सब कुछ, है ना? हाँ? हाँ, part of life, है ना? Part of struggle, part of your UPSC struggle, है ना? You will say in the future कि हमने इस तरीके से भी पढ़ा, ऐसी भी पढ़ाई हमने की थी, है ना? बैग वगैरह रखना है तो यहाँ रख दो, लेके मत बैठो, ऐसा कर लो, और क्या? हाँ, ये ठीक है, ऐसे तुम भी हैंग कर लो उसको, ठीक है? तो what we have studied yesterday, we were talking about the modernity, है ना? मतलब we were talking about the social changes in Europe, modernity in Europe, है ना? And how emergence of sociology, है ना? तो इस पर हम लोग बात कर रहे थे, ठीक है? So Dilaksh, this is your first class, you can help those students, ठीक है? बहुत थोड़ा ही राइटिंग हुआ, आई थिंक वी हैव रिटन ओनली 1 or 2 पेजेस ओनली, है ना? ठीक है? सो दिस इज़ द थर्ड क्लास ऑफ द सोशियोलॉजी, है ना? आपने 2 ही क्लासेस ली हैं अभी तक, तो दिस इज़ द थर्ड क्लास, तो वी आर इन इनिशियल स्टेज, तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, ठीक है? ठीक, सो थोड़ा सा राइटिंग का काम है आज, क्योंकि कल हमने बहुत डिस्कशन किया था, आपको याद होगा लगभग 1 hour 1 point something 15-20 मिनट्स हमने डिस्कशन किया था, एंड कंटेंट को लेकर जाना बहुत ज़रूरी है ना? सो ये मेरी मजबूरी भी है, फिर देन उसके बाद हम लोग उसके ऊपर डिस्कस कर सकते हैं. सो राइट डाउन फ्रॉम हेयर. एक बार शुभम देख लो, उनकी हेल्प कर दो, क्या है बता दो उन्हें, थोड़ा सा एक आध पेज क्या छोड़ना है बता दो उन्हें. हाँ, थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी उनकी. यस गौरव, शहरयार, वैशाली, हमने कल जहाँ पर छोड़ा था, ठीक है, उसी के आगे हमको लिखना है. ओके ओके, राइट डाउन. Social changes in Europe. This is the heading. Social changes in Europe. Dash. Today, all of us believe in a system. Today, all of us believe in a system where everyone is treated equality, where everyone is treated equality by the law, but back in the Middle Ages, there was neither the concept of equality, nor the concept of law. Europe had gone through a long chain of events and intellectual currents with not only transformed European society, but also brought the concept of modernity. Actually, they were following the rule of the Vatican law. Vatican law means law of churches. ठीक है? तो they were following this type of law. They were following the system or the process of the salvation. You know about salvation?
You know about salvation? That is called the moksha, है ना, moksha in Hindi. So yesterday I told you कि that अगर हम बात करें in our Indian society, तो actually we all of us also follow that the rule of salvation, है ना. अभी भी अगर हम बात करें in the 2023 21st century, so आप देखो हम भी बात किसकी करते हैं? We only talking about the salvation, satisfactory thought, thought of satisfaction, the good karmas, the deeds, है ना. हम ही तो इन्हीं की बात कर रहे हैं. हाँ, yes, life after death, not the life after which is we are living in the currently on the earth. We don't talk about that, है ना. Actually we always talk about that after life, है ना, death, after death of life. तो क्या होगा? How we get the salvation, है ना. What are the good deeds? What about karmas? Or always we talk about this only, है ना. एंड आप देखो हमारा रिलीजन भी कंटिन्यूसली हमें वही बताता है, कंटिन्यूसली हमेशा हमें यही बताता है कि आप गुड डीड्स करें, अच्छा करें, है ना, जिससे आपको सैल्वेशन मिले, जल्दी से जल्दी मिले, है ना. एंड आफ्टर 50-60 तो बिल्कुल आपको टूवर्ड्स मतलब चले जाना चाहिए. तो दैट्स वाई यस्टरडे आई टोल्ड यू कि सेम इक्विवेलेंट विद द सनातन रिलीजन. तो आप कैथोलिक ले लें एंड ऑन द अदर हैंड यू टेक द सनातन, ठीक है. तो आप देख लें कि दोनों में देयर इज नो डिफरेंस बोथ ऑफ द रिलीजन. यहाँ पर दोनों में कोई डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा, ठीक है ना. सो राइट डाउन उसे क्या गया. सो लाइक आप इसको इस तरीके से भी ड्रॉ कर सकते हो अगर आपको यूपीएससी में यू वांट टू ड्रॉ. सो लाइक दिस, दैट middle age, modernity and sociology, ठीक है. Here ठीक है. Intellectual currents 1400 to 1600. But if you want to take complete era, complete, so that is 1300 to 1800 AD, है ना. क्लियर है आपको. सो मिडिल एजेस के क्या कॉन्सेप्ट थे, कैसे उनमें इंटेलेक्चुअल करेंट्स आए, कैसे चेंजेस हुए, एंड वहां से हमें क्या पता चलता है? सोशियोलॉजी. जब वो थॉट्स आते हैं, थिंकिंग आते हैं, जब वो डिस्कशंस आते हैं, देन हम बोलते हैं कि यस दैट वाज द एमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी. मतलब सोशियोलॉजी, व्हाट द सोशियोलॉजी क्या है? सोशियोलॉजी क्या है ऐसे बताओ. व्हाट इज द सोशियोलॉजी अकॉर्डिंग टू यू? हाँ, स्टडी ऑफ सोसाइटी, है ना. व्हेन वी टॉक अबाउट द प्रॉब्लम्स ऑफ सोसाइटी, एक्चुअली व्हाट इज द सोशियोलॉजी? सपोज दैट वी केम हियर एंड वी सॉ कि यहाँ पर कुछ भी नहीं है क्लास के अंदर, है ना, देयर इज नो एनी सिस्टम, है ना, सब कुछ ऐसा. तो व्हाट हमने क्या बोला? वी विल टॉक टू द सर. अगर कंटिन्यूसली 2-3 डेज यही चीज चल जाए तो डेफिनेटली वी फील दैट कि वी हैव टू टॉक अबाउट द दिस अनमैनेज्ड सिस्टम एंड टू द मलूका सर, वी हैव टू टॉक टू द मलूका सर. तो हमें ये फील होगा, हमें ये फील होगा. हाँ, 1 डे 2 डे की बात है, कोई बात नहीं, ठीक है, चलता है. तो व्हेन वी टॉक अबाउट द सोशल प्रॉब्लम्स, सोशल चैलेंजेस, देन वही स्टडी ऑफ सोसाइटी, दैट इज कॉल्ड द सोशियोलॉजी. सेम उस समय पर था. मिडिल एजेस में बहुत प्रॉब्लम्स थे यूरोप के अंदर एंड एवरीवेयर, कहीं भी थे. बट एक्चुअली वी आर टॉकिंग अबाउट यूरोप, क्योंकि उस वक्त बाकी सब कॉलोनिज्म थे, है ना, सब के सब कॉलोनीज थे मोस्ट ऑफ दी. उसमें से जैसे कि इंडिया में तो मुगल एरा था, अमेरिका का अपना सिस्टम था, तो हम किसकी बात कर रहे हैं? ओनली यूरोप की. उसमें भी मेनली हम जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड, यूके, हम इनकी बात कर रहे हैं. तो जब मिडिल एजेस में वो जो जितने भी थॉट्स थे, वो वैटिकन लॉ, लॉ ऑफ चर्चेस, तो जहाँ पर सिर्फ चर्च का लॉ था, ठीक है, चर्चेस ने जो कहा वो उनको
एक्सेप्ट करना पड़ता था, दे कुड नॉट डिनाइड, वो उसको डिनाइड नहीं कर सकते थे। आप इस बात को बहुत जगह पर पढ़ोगे, यू विल स्टडी इन द हिस्ट्री, यू विल स्टडी इन द इकोनॉमिक्स, यू विल स्टडी इन द पॉलिटिकल साइंस, एंड ऑल्सो यू आर स्टडिंग इन द सोशोलॉजी, एंड दिस इज द बेस ऑफ सोशोलॉजी, मतलब एमर्जेंस ऑफ सोशोलॉजी। तो चर्चेस का लॉ था। तो हम वही बता रहे हैं, आज हम क्या बोलते हैं, इक्वालिटी बिफोर लॉ। आज हम ये बोलते हैं कि इक्वालिटी कोई रिलीजन नहीं देता है ना, कोई मोनार्क नहीं देता है, कोई बिशप या कोई लाइक पंडित और कोई मौलाना नहीं देता है। आज इक्वालिटी हमें देता है आर कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। तो हम बात करें लॉ की, तो वही चेंजेस उस वक्त यूरोप में आ रहे थे। लगातार लोगों के अंदर ये टॉक्स हो रहे थे, डिस्कशंस हो रहे थे, थॉट प्रोसेस आ रहा था, करंट इंटेलेक्चुअल्स हो रहे थे, और वही सारी चीज़ें क्या लेकर आती है, मॉडर्निटी। और जहाँ यूरोप में मॉडर्निटी वस केम, वहीं से हम बोलते हैं दैट एमर्जेंस ऑफ सोशोलॉजी। जब हम उनके ऊपर बात करना शुरू कर देते हैं, दैट इज सोशोलॉजी। सेम हैपेंड विद द इंडिया। इंडिया के अंदर आप देखिए 18th लेट 18th सेंचुरी तक, अगर हम देखिए 17th 18th सेंचुरी तक, सो देयर वर सो मैनी सोशल रिलीजियस प्रॉब्लम्स, है ना। बहुत स्टीरियोटाइपनेस थे, बहुत सारे ब्लाइंड फेथनेस थे, हम देखते हैं। लेकिन फिर हम देखते हैं कि लास्ट 18th सेंचुरी एंड 19th सेंचुरी में बहुत सारे रिफॉर्म्स मूवमेंट हुए, बहुत सारे रिलीजियस मूवमेंट्स हुए, एंड आफ्टर देन हम क्या बोलते हैं कि इंडिया के अंदर मॉडर्निटी आई आफ्टर दैट। तो लेकिन हम क्या बोले, इंडिया के अंदर अभी भी उस तरीके का मॉडर्नाइजेशन नहीं हुआ। हमने कल भी डिस्कशन किया, अभी उस तरीके का मॉडर्नाइजेशन नहीं है इंडिया के अंदर, अभी भी आप देखें। हाँ, लेकिन फिर भी थॉट्स बदले, बहुत सारे ऐसे ट्रेडिशंस थे, कल्चर था, रिचुअल्स थे, है ना, कस्टम्स थे जो डिनाइट किए गए, कोलैप्स किए गए बाय द लॉ, है ना, बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। तो फिर भी, है ना, फोर्सफुली कैसे भी बाय द सोसाइटी, लेकिन फिर भी अभी हम बोल रहे हैं कि वो मॉडर्निटी नहीं है जैसी मॉडर्निटी यूरोप में थी। यस, सो पैराग्राफ चेंज and sorry, this is the heading actually. Origin of intellectual ideas. Origin of intellectual ideas. Intellectual ideas. Yes. Subheading, intellectual ideas slash currents. Subheading, intellectual ideas slash currents. Yes, write down. Defined as those dash, defined as those that led to the changes, that led to the changes in the ideas and thinking, in the ideas and thinking, and the thinking. Yes, now subheading hai, one more subheading, that is Renaissance. You know Renaissance? No, not like rebirth. Renaissance. Spell out करूं, ठीक है, क्लियर है, स्पेल आउट, देयर इज अ नीड ऑफ स्पेल आउट। रिनाइसेंस, RENAISSANC, रिनाइसेंस, है ना। हाँ, यस, क्या बोल रहे थे बेटा लाडली? रीबर्थ, नॉट प्रॉपर रीबर्थ, नॉट एक्स्ट्रा मोर समथिंग। हाँ 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 हाँ, डिफरेंट आइडियाज, हाँ हाँ हाँ, नहीं, नॉट मार्क्स, नो, लाइक एडम स्मिथ, यू कैन टेक द नेम ऑफ परफेक्टली एडम स्मिथ, है ना। तो लाइक जैसे एडम स्मिथ ने, ही रोट द बुक द वेल्थ ऑफ नेशंस इन द 1776, ठीक है, एंड एडम स्मिथ टॉक्ड अबाउट द कैपिटलिज्म, है ना, इन सब के ऊपर, द मार्केट फोर्सेस, है ना, दैट कॉम्पिटिशन, है ना, लेबर लॉज। तो ये हम कह सकते हैं लाइक किसी भी तरीके का जो न्यू थॉट्स है, वी कैन से दैट इज रिनाइसेंस, ठीक है ना। तो दैट इज रिनाइसेंस। एक्चुअली हिंदी वर्ड जो इसका है, दैट इज वेरी नाइस, दैट इज कॉल्ड द पुनर्जागरण।
पुनर्जागरण, लाइक फिर से जागना। तो आप जागे, जैसे इंडिया में भी मुझे लगता है हमें रिनाइसेंस की नीड लग रही है इतना होने के बाद भी। तो रिनाइसेंस, और जो रिनाइसेंस बताता है वो एक परफेक्ट वे में बताता है, नॉट लाइक दैट कि हम वही जो मॉडर्निटी है सिर्फ वही क्लोथिंग या बाय फूडिंग, नहीं, कि जब तक वो पूरे थॉट्स, जैसे कि जब तक इंडिया से ये पूरे स्टीरियोटाइप थॉट्स ना फिनिश हो जाए विमेन को लेकर, कास्टिज्म को लेकर, कम्युनलिज्म को लेकर, रीजनलिज्म को लेकर। यस्टरडे वी टॉक्ड अबाउट द मणिपुर वायलेंस, कि अभी भी लोग के माइंड में है कि मतलब ये तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया का प्रॉब्लम है, इससे हमारा क्या लेना देना, हमें क्या करना, तो नॉर्थ ईस्ट वाले जाने। साउथ में इशू है तो नॉर्थ ईस्ट को भी, नॉर्थ ईस्टर्न पीपल को लगता है हमें क्या करना, है ना, ये तो साउथ इंडियन जाने। तो बता अभी भी हमारी कंट्री में दैट मॉब लिंचिंग, मतलब आप सोचो कि इस समय में या इतना जो राइट हो जाते हैं, वायलेंस है, कम्युनल वायलेंस है ना, मतलब सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, मॉस्क एंड टेम्पल को लेकर कोई मतलब जस्टिफिकेशन ही नहीं है, कोई लॉजिक ही नहीं है उसके पीछे। डजेंट मैटर कि यहाँ पर एक मॉस्क है या टेम्पल है, लेकिन फिर भी लोगों का माइंड सेट है। उसके बाद भी विमेन को लेकर सो मैनी थॉट्स, विमेन को लेकर तो क्या ही बोले, पूरा पैट्रियार्कल माइंड सेट है लोगों का, है ना, तो वही सारी चीज़ें हैं। तो आप देखिए अभी भी इंडिया में रिनाइसेंस जैसा, दैट्स वाई कभी वर्ड आपको पता है पूरे सोशियोलॉजी में यूज़ नहीं किया गया। व्हेन वी स्टडी आवर सेकेंड पेपर, तो वहाँ पर व्हेन वी स्टडी अबाउट देसाई और घुर्ये एंड श्रीनिवासन, है ना, आंद्रे बेतेई, तो कहीं भी ना उनके थॉट्स में आपको ऐसा कुछ नहीं मिलेगा, कोई मॉडर्निटी, कोई रिनाइसेंस। एंड वी विल टॉक अबाउट ओनली द कास्ट, मतलब वो तो और घुर्ये तो और डेप्थ में जाकर बता रहे हैं कि मतलब हाँ ये चीज़ें हैं इंडिया में और ये ठीक थी। मतलब स्ट्रेंज कि हम जो यहाँ पर पढ़ रहे हैं फर्स्ट पेपर में, सेकेंड पेपर का जो फर्स्ट टॉपिक होगा मतलब वो बिल्कुल डिफरेंट होगा, फील ही नहीं होगा, वो लगेगा बिल्कुल इंडियन सोसाइटी हम पढ़ रहे हैं। तो वही चीज़, ऐसा रिनाइसेंस कोई इंडिया में एक्चुअली देखे तो वो नहीं आया जैसा कि यूरोप के अंदर आया रिनाइसेंस, ठीक है। ओके, सो इन ब्रैकेट 1400 to 1600, to 1600 Renaissance. Yes, write down. For 1000 of years, for 1000 of years, church had been telling the people of Europe, telling the people of Europe that their lives on earth, were inconsequential, and they should only worry, about going into heaven, when they died. Continue. As a result, most European peasants, comma, artisans, and even kings, spent their entire lives trying to follow Vatican law, in bracket the rule of church,
bracket close. This devotion to the church, left little time for Europeans to do anything else. Also, medieval art and literature was all about church and salvation. However, the church's domination of European culture soon ended when the Renaissance began. And humanism spread throughout the land. Paragraph change. Renaissance was the period of artistic, scientific, and cultural growth for the people of Europe. Artists and scientists worked hard every day to improve their lives, and the lives of the people around them. So क्वेश्चन अराइज हुए कैथोलिक टीचिंग्स के ऊपर, है ना। तो हम नेक्स्ट अपने टॉपिक्स में क्या टीचिंग्स है, देन उसके अपोज यस्टरडे भी हम लोगों ने कल भी डिस्कस किया कि प्रोटेस्टेंट रिलीजन वाज केम, है ना, एंड दे वर कॉल्ड द प्रोटेस्टेंट्स, है ना। सो हु अपोज्ड द कैथोलिक that actually teachings, not religion, who opposed the Catholic teachings, है ना। तो उन्हीं को हमने क्या कहा, they were called the Protestant, that's it। अब oppose में क्या था, what are the Protestant teachings opposite to the Catholic teachings, है ना। तो we will study in the Max Weber's topic in the sociology in our first paper when we read about we study about the thinkers, है ना। As you know कि there are 6 thinkers in your syllabus, so one of them that Max Weber, एंड तो वो हमें बताएंगे, है ना, और हम पढ़ेंगे उसमें कि व्हाट आर द प्रोटेस्टेंट टीचिंग्स। मतलब वेरी इंटरेस्टिंग, मुझे ऐसा लगता है बहुत इंटरेस्टिंग है। और मे बी बहुत बड़ा रीज़न था कि जब वो टीचिंग्स, मतलब हम जिसे कहते हैं ना, वो कंबाइन अलॉन्ग विथ, वो सब कुछ साथ में था।
1400 to 1600 एडी एंड उसमें अगर हम बात करें तो वो सारी चीज़ें बिल्कुल साथ में चल रही थी। कैसे साथ में चल रही थी? मतलब लाइक रिनाइसेंस भी चल रहा है, मॉडर्निटी भी हो रहा है, देन उसके बाद कैथोलिक टीचिंग्स का भी अपोज हो रहा है ना, प्रोटेस्टेंट्स वर कमिंग, वो भी आ रहे हैं, अलॉन्ग विथ सब हो रहा है। देन एडम स्मिथ, मतलब वो आगे इसी एरा में, इसी पीरियड में आगे जाकर 17th सेंचुरी में ही रोट द बुक दैट द वेल्थ ऑफ नेशंस। तो ऐसा लगता है ना कि वो सारी चीज़ें एक साथ बिल्कुल इंक्लूडेड वे में सब बिल्कुल यूरोप के अंदर, मतलब जिसे हम कहते हैं नेचर भी चाह रहा था कि लाइक मॉडर्निटी आए, चेंजेस हों, और वो चेंजेस हम बराबर इसमें देखते हैं। तो कल हमने देखना जितना डिस्कशन हमने किया यस्टरडे, ऑल व्हाट वी डिस्कस्ड, आप देख रहे हैं वो सारा आज राइटिंग्स में आ रहा है। आपको ऐसा लग रहा है बस मैडम आज उसके बारे में लिखवा रही है, कल डिस्कशन कर दिया था मैडम ने एंड टुडे वी आर राइटिंग, बस, है ना। लेकिन फिर भी मैं साथ साथ आपको बताती जा रही हूँ ताकि आपका मतलब माइंड और ओपन होता चला जाए। एंड कंपेयर कीजिए इसको इंडिया से, आप इंडिया से कंपेयर कीजिए। जैसे कि आप देखिए हम लोग कैथोलिक टीचिंग्स की बात कर रहे हैं, है ना। अब कैथोलिक टीचिंग्स की तरह हमारे सनातन टीचिंग्स हैं, हिंदू माइथोलॉजिकल टीचिंग्स हैं हमारे। तो व्हाट सेज, क्या कहते हैं हिंदू माइथोलॉजिकल जितने भी टीचिंग्स हैं वो क्या कहते हैं हमें, अकॉर्डिंग टू यू क्या बताते हैं हमें, बताओ। आपको ज़्यादा फिर बेटर समझ में आएगा। बस जो आप बताओगे ना, सेम थिंग हैपेंड इन द यूरोप, वो सारा का सारा कुछ यूरोप में हुआ। बताओ क्या टीचिंग्स है अकॉर्डिंग टू यू? सेक्रीफाइसेस, मतलब वी डू सेक्रीफाइसेस, हम करें। अच्छा, वी शुड नॉट डू, अलाउड है? नहीं है, नहीं, लाइक कैसे, हाउ हाउ हाउ? अच्छा एनिमल, अच्छा सेंस ऑफ, हाँ, ओके ओके ओके, मतलब आई थिंक मतलब अदरवाइज तो सनातन धर्म सेज की दैट आपको यू शुड डू द सेक्रीफाइसेस, है ना, इन एवरी एरिया। हाँ, बट उसके उसमें और सेक्रीफाइसेस एंड बस इतना, और कुछ बताओ। फिनांस, अच्छा पेनांस, यस, तपस्या, ओके ओके, हाँ तपस्या, पेनांस, यस, ठीक है ठीक है, तपस्या। बट मतलब विच टाइप ऑफ पेनांस? हाँ हाँ हाँ, पेनांस, यस, टू गेट द सेल्वेशन, है ना, इन दिस वे ना, यू आर टेलिंग, ओके। हाँ हाँ, like we have our 4 ashramas that brahmacharya, then grihastha, हाँ, then vanaprastha and sannyasa. तो in vanaprastha we actually should start, है ना, to try for the penance or for the salvation, तो है ना, तो वो चीज़ है। हाँ, यस यस, ठीक है, उस तरीके से, यस, और यस, हाँ हाँ, religion is the on the top मोस्ट अथॉरिटी और समथिंग, है ना। हाँ, जो मतलब एक्चुअली हम पर राज करता है, मतलब रिलीजन, है ना, ठीक है। यू समथिंग? हाँ, विच टाइप ऑफ पर्सपेक्टिव? हाँ 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 हाँ, यस। सो मतलब वही बात आ गई ना, मतलब आप देखो, यू ऑल आर एग्री ना कि सनातन क्या कहता है, हिंदू जो माइथोलॉजी में हमको क्या बोला जाता है। अरे इसके बाद भी बहुत सारी चीजें हैं। सबसे बड़ा सेटिस्फैक्टरी थॉट सिखाया जाता है हमें, है ना, डीड्स के बारे में बताया जाता है, कर्मास के बारे में बताया जाता है हमें ऑलवेज, है ना, हमेशा नहीं बताया जाता। गुड कर्मास करोगे तो फिर देन आपको सैल्वेशन मिलेगा, है ना, आप यू विल गो, स्वर्ग और नर्क का कॉन्सेप्ट है, हेवन एंड इन सारी चीज़ें हैं। बराबर हम अपने चाइल्डहुड से सब सुनते आ रहे हैं, है ना, बराबर सुनते आ रहे हैं। और आप ऐसा करो, वैसा करो, ये अच्छा नहीं है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं होना चाहिए, है ना, गैम्बलिंग नहीं होनी चाहिए, हमें वाइन नहीं पीनी चाहिए। क्यों, ये सब नहीं है क्या? बताओ ना खुलकर, यही तो सारा बताना है। सोशोलॉजी में मैंने बोला ना, अपने आप में बैरियर मत बोलने से पहले आप सोचो ना, आपको जो सिखाया जाता है आप सोचो, है ना, यू हैव टू बेयर द ब्रह्मचर्य एटलीस्ट एट द एज ऑफ 25-26, मतलब जब तक आप मैरिड नहीं होते हैं।
फिर आफ्टर मैरिज आपके बहुत सारे ड्यूटीज़ बताए जाते हैं। तो ये क्या है, मतलब एक तरीके से हमें बाइंड किया जा रहा है ना, एक तरीके से। आप देखो ना, हम अपने आप को कहीं ना कहीं स्टॉप्ड कंडीशन में पाते हैं, कहीं कहीं बैरियर्स हम लोग को लगता है अपनी लाइफ के अंदर, नहीं फील करते आप लोग? मतलब अगर आप थोड़ा सा डेप्थ में जाकर सोचो तो आपको फील होगा कि हमारे अराउंड बहुत बैरियर्स हैं, और शायद हम बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन हम नहीं कर पाते हैं बहुत कुछ। और शायद हम, मतलब हम बहुत कुछ कर सकते हैं, वी कैन डू मच मोर इन आवर लाइफ्स, बट वो कहीं ना कहीं बैरियर्स हैं, कर्मास का, सोसाइटी का, रिलीजन का, बहुत सारे बैरियर्स हैं। तो वही वाली बात हो गई। तो यही सारा सिस्टम कहाँ पर था? कैथोलिक टीचिंग्स में था। आप वाइन नहीं लें, गैम्बलिंग नहीं होनी चाहिए, कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स नहीं होना चाहिए, आपको सेटिस्फाइड रहना चाहिए, डिवोटी होना चाहिए। एंड स्ट्रेंज की जो प्रोटेस्टेंट है वो जस्ट उसके ऑपोजिट बता रहा था। वो कहता वाइन, एग्जैक्टली वो सबसे पहला थॉट देता है, यू कैन टेक द वाइन इफ यू आर अर्निंग, तो यू हैव टू राइट कि आप वीकेंड पे वाइन पिए, आप कमा रहे हो, आप अपने लिए मोमेंट्स बिताओ। यस, यू कैन सेटल an extra marital affairs also, there is no issue, बट आपको अपनी फैमिली के लिए भी डिवोटी होना पड़ेगा। कोई बात नहीं, आपको लगता है तो आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी सेटल कर सकते हैं। हाँ, यस, स्ट्रेंज ना। और देखिए किसको ये टीचिंग्स अच्छे नहीं लगेंगे, सोच के देखो आप। अर्न द मनी, लॉट ऑफ मनी यू हैव टू बी अर्न, मतलब आप कमाओ और आपको कमाना है, और यू शुड अर्न द मनी, और इतना पैसा कमाओ, प्रोटेस्टेंट कहता है इतना पैसा कमाओ कि उस पैसे से आप जो मन चाहे वो खरीद सको। कैथोलिक वही उल्टी टीचिंग्स, जस्ट ऑपोजिट वही। सनातन, लाइक सनातन टीचिंग्स, हमें वही सिखाया जाता, बस बहुत है, जितने में वो रोजी रोटी चल जाए, लाइक ऐसे ही बोलते हैं ना। आपको कहीं बहुत अच्छा जॉब मिल रहा है, आपको घर से थोड़ा दूर जाना है, बाहर जाना है, क्या करना है? अपनी सिटी में आपको, हाँ, सेटिस्फेक्शन, वही थॉट ऑफ सेटिस्फेक्शन। क्या करना है आपको? अपनी सिटी में 25,000 मिल रहा है, दिल्ली मुंबई जाओगे 50 मिलेगा, बात एक ही है, उतना एक्सपेंसेस में निकल जाएगा। भाई जाने तो दो, डेवलपमेंट होने तो दो। तो हमारी कंट्री में डेवलपमेंट इसलिए भी नहीं है, हम बड़े सेटिस्फैक्ट्री किस्म के पीपल हैं, बड़े ही सेटिस्फाइड लोग हैं हम लोग। पता, हम लोग वो लोग हैं कि अगर घर में फूडिंग नहीं है, सब भगवान की इच्छा। सही बात है ना? बिल्कुल सही बात है ना? ये बिल्कुल सही बात है। किसी को डिजीज है, कोई मर रहा है, क्या कर सकते हैं? भगवान ही तो है। मतलब आफ्टर वन डे, thrice a week I go for the hospital, and when I see the other patients, so they are crying, they are shouting, मर जाएंगे हम तो, मरना ही हमें, सब कर्मों का फल है हमारे, निकल रहा है, मतलब लाइक ऐसा मैं ऑलवेज सुनती हूँ। आई एम ऑल्सो डायलिसिस पेशेंट, बट आई हैव नो इशू। मैं वही स्ट्रगल कर रही हूँ अपनी लाइफ में, मॉर्निंग से उठना, आना, अपने वर्क को प्रेफरेंस देना, देन फिर हॉस्पिटल जाना। तो मैंने तो कभी ये फील नहीं किया, आई नेवर फेल्ट लाइक दैट कि हाँ मतलब ऐसा मेरे साथ हो रहा है, ये कोई डीड्स है या मेरे कोई बैड कर्मास हैं। दिस इज द डिजीज जो किसी को भी हो सकती है। पर लेकिन आज भी इन आवर सोसाइटी व्हाट वी से कि ये तो कर्मों का फल है ना? पक्की बात है। किसी को कैंसर है, कोई बहुत बड़ी डिजीज है, भाई ये तो सब कर्मों का ही फल है, इसी बर्थ में, इसी उसमें हमको भोगना पड़ता है ना? आप भी सुनते हो, ऐसा नहीं, आप भी इंडियन सोसाइटी से ही बिलोंग करते हो, कोई यहाँ अमेरिका या लंदन से नहीं आया है। और इंडियन सोसाइटी आप कहीं भी चली जाइए वो सिमिलर है। क्यों दिलक्ष? इज इट ट्रू और नॉट? हाँ, ट्रू ना? कि नॉर्थ ईस्ट में देयर इज सम क्वाइट डिफरेंस, कुछ ऐसा सिस्टम, सम डिफरेंट सिस्टम यू गेट फाइंड। बताओ कि कुछ अलग है? नो, ऐसा नहीं है, ऐसा ही है। वेयर फ्रॉम यू? फ्रॉम आसाम और मणिपुर, और कहाँ से? हाँ, यू मणिपुर। अच्छा, मणिपुर। अच्छा, सो यू हैव सीन दैट वायलेंस इन मणिपुर? यू हैव सीन? हाँ,
अच्छा, ओके. अच्छा, which village? ओके ओके ओके. हम्म. तो also people are vacating their houses. Okay. अच्छा. अच्छा. हम्म. सो प्रॉब्लम तो ही पूरे इंडिया के अंदर कहीं भी चले जाओ, है ना. नॉर्थ ईस्ट जाओ, साउथ जाओ, कहीं भी जाओ, तो वही. तो ये पूरे टीचिंग्स हैं, ठीक है ना. तो आप बिल्कुल, मैंने बोला ना सोशियोलॉजी जस्ट मतलब इससे मैंने बता दिया क्योंकि देर आर सो मैनी क्वेश्चंस ऑन दिस टॉपिक कि आपको पूछा जाएगा यूरोप की मॉडर्निटी के ऊपर, कैथोलिक टीचिंग्स के ऊपर, रेनेसेंस के ऊपर, मॉडर्निटी के ऊपर, है ना. सो थॉट आपके माइंड में रहना चाहिए कि जो आप सनातन टीचिंग्स के बारे में वट यू नो, बस वही उठाकर आपको वहाँ पर कैथोलिक टीचिंग्स के बारे में राइट डाउन कर देना. मतलब सिमिलर, बिल्कुल सिमिलर, कुछ भी चेंजेस नहीं है. बस हम जो वट वी नो अबाउट आर सनातन टीचिंग्स, बस यू हैव टू राइट देयर ओनली. बस आपको उसके बारे में वहाँ पर लिख देना. यस, राइट डाउन. कंटिन्यू. A philosophy, you can change the paragraph also. A philosophy which questioned the teachings of, which questioned the teachings of Catholic Church, teachings of Catholic Church, and concentrated on the significance of human activity, comma, learning, and bettering oneself, which spawned individualism. It emphasizes that the rights and responsibilities of each individual person are more important than the spiritual destiny of the soul. Scholars begin to believe that what we do with our time on earth is more important than what we do in the afterlife. That was called the humanism. Paragraph change. Secularism came as a challenge
secularism came as a challenge to Vatican law, Secularism was the act of living. Secularism was the act of living, and customs written and created by people, without the use of religious text, to guide them. It was the first time people started following laws that were written by humans for humans. Laws that were written by humans for humans. Paragraph change. Many educated scholars that lived during the Renaissance, used humanism to come up with their own ideas that might upset members of the church. Upset, yes, upset. Members of the church, yes. Paragraph change. Thereafter, we saw birth of Renaissance art and literature, and scientific renaissance. So, art and literature की भी अगर हम बात करें, so the painters, artists, they painted the picture of sorrow individuals, sorrow people, मतलब जो बिल्कुल दुख में हैं, है ना? They used only 2D dimension only. They used the color, most of the golden color. They used जो most of the इन्होंने color use किया, और उसमें मतलब कुछ भी कोई कोई emotion नहीं, कोई feeling नहीं. लेकिन when we see or we saw the Renaissance period, pictures of Renaissance period, तो वहाँ पर ना with emotions जो है चीज़ें वो शो की गई, और कुछ डिफरेंट कलर्स को यूज़ किया गया, 3D डायमेंशंस दिखाए गए. एंड उसके पहले ना जब भी वो दिखाते थे तो चर्चेस के जो पिक्चर्स हैं, मतलब उसको रिलीजन, कुछ लोग हैं, मदर मैरी है और बस वो गोद में उसी तरीके से ली हुई हैं, लोग रो रहे हैं, मतलब इस तरीके से क्राइंग पीपल उस तरीके से. लेकिन उसके बाद फिर जब वही लॉजिक, मतलब बेसिकली वहाँ पर बताया जाता था फैटलिज्म,
कि वही आप जो वेटिकन लॉ है, लॉ ऑफ चर्चेस है, आप उसको बिलीव करें और उसी तरीके से बताएं, जिसे कहते हैं ना बहुत ही एक क्या सैडनेस के साथ जो पिक्चराइजेशन किया जाता था, मतलब डिलिबरेटली सोसाइटी को वो शो किया जाता था कि सब कुछ फैटलिज्म है, जो भी कुछ आपके साथ हो रहा है आप सीधी सी बात है कि उसे अपना जो है फैटलिज्म मान लें, अपना लक मान लें, अपनी तकदीर मान लें और उसको लेकर चुपचाप बैठ जाए। एंड कार्ल मार्क्स अटैक्ड ऑन दिस थॉट ओनली, उसने इसी थॉट पर सबसे पहले अटैक किया था कार्ल मार्क्स ने, कि मतलब इफ यू आर पुअर तो दैट इज योर फैटलिज्म। समझ रहे हैं आप, अगर गरीब हैं, यही बताता था ये थॉट जो वेटिकन लॉ था, एंड आपको ना उसे पे करना पड़ेगा। आप अगर आप यहाँ पर आए हो, इस अर्थ पर आप आए हो, और मतलब जो रिच हुआ या रिच जिसने रिचनेस के साथ बर्थ लिया, तो ये उसके लास्ट मतलब कर्मास हैं, डीड्स है, उसके गुड कर्मास हैं कि देखो वो अमीर हुआ, और जो गरीब है, पुअर है, तो ये भी देखो उसका फैटलिज्म है। तो यू हैव टू पे, आपको ये सब पे करना पड़ेगा। हाँ सेम, यस 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 शहरयार, कास्टिज्म बता रहा है शहरयार, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, यस कास्टिज्म, कि हम कहते हैं ना इन आवर सोसाइटी इफ यू आर ब्राह्मण, अगर आप यू टेक इन बर्थ विद द ब्राह्मण कास्ट, तो आप पता है आप बहुत ऊपर हो, क्योंकि आपने ब्राह्मण कास्ट में बर्थ लिया है। एंड इफ आई एंड यू वी हैव टेकन बर्थ इन द SC और ST कास्ट, तो ये हमारे बुरे कर्मों का फल है, क्योंकि हम लोअर कास्ट में पैदा हुए हैं। देखो तो ये सारी बातें है ना, अगर आप विमेन हो तो ये भी आपका कर्मा है, आप मेल हुए हो, क्योंकि मेल कंपैरेटिवली हमेशा फीमेल से बेटर ही होते हैं, तो ये भी वाह आपके कितने गुड कर्मास हैं। तो आप देखो यही कह कहकर हमें अभी तक ये बातें सोसाइटी में बोली जाती है, एंड एक्चुअली वी अग्रीड, हम भी अग्रीड हैं, उन सारी बातों से हम अग्री कर रहे हैं, हमें भी प्रॉब्लम नहीं, हमें भी लगता है हाँ सही बात है, ये अडानी अंबानी है, वास्तव में हम भी कहते हैं गोल्डन स्पून लेकर पैदा हुए हैं, सही बात है भाई, क्या किस्मत, हम ऐसा कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। एंड व्हाट अबाउट द धीरू भाई अंबानी, फिर उसके बारे में क्या बोलेंगे? कलाम साहब, एक्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उनके बारे में हम क्या बोलेंगे बताइए? वो 5 ब्रदर सिस्टर थे, मदर ने किस तरीके से उनकी अपब्रिंगिंग की, क्या उन्होंने सोचा था कि वो साइंटिस्ट और इंडिया के प्रेसिडेंट? एंड ऑब्वियसली हमें बात करनी चाहिए, वी शुड टॉक ऑन द मिस्टर नरेंद्र मोदी। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, हम पॉलिटिकल टॉक नहीं कर रहे हैं। चाय वाला, अब वो चाय वाला थे या नहीं थे, लिव दैट, हाँ, बट किसी पॉलिटिकल बैकग्राउंड से नहीं थे, कोई बहुत रिच फैमिली से तो नहीं थे, हाँ ये तो पक्की बात है, एकदम एक जनरल कॉमन पीपल थे। हाँ वी आर नॉट सेइंग कि पता नहीं अब चाय वाले थे कि नहीं थे, बट जो भी है राइटिंग से वो कहते तो यही कि हाँ वो चाय वाले थे, एक्चुअली ट्रेन में बेचते थे। अब हमें पॉलिटिकल टॉक नहीं करनी है, तो सिर्फ बता रहे एग्जाम्पल कि अब इसके लिए हम क्या बोलें, है ना। तो यही सेम थॉट था वहाँ पर, वेटिकन लॉ जो लोगों को मैनेज करता था, जज करता था, लोगों को बताता था, और लोग उस पर बिलीव करते थे। लेकिन जब रिनेसेंस आया, मॉडर्निटी आई यूरोप के अंदर, तो वही जहाँ से एमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी होता है, तो बताता है कि नहीं, ये थॉट नहीं है, हम अमीर भी हो सकते हैं और गरीब भी, हम पुअर बर्थ ले सकते हैं, पुअरनेस के साथ, पॉवर्टी के साथ बर्थ ले सकते हैं, लेकिन हम मरेंगे कैसे वो हम पर डिपेंड करता है। नॉट मस्ट कि अगर हमने पॉवर्टी में बर्थ लिया है तो हम लाइफ टाइम पुअर ही रहने वाले हैं, है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वही चीज़ है, ऑल्दो कि ये थॉट्स अब इंडियन सोसाइटी में भी फॉलो हो रहे हैं, लेकिन फिर भी अभी भी हम लोग ऐसे बहुत से थॉट्स हैं जिनको मान रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, है ना। तो वही सब चेंजेस लाना है, और जब वही चेंजेस हो जाएंगे, सो दैट इज कॉल्ड द ट्रू मॉडर्निटी हमारी सोसाइटी के बिहाफ पे, उससे हम कहेंगे ट्रू मॉडर्निटी, ट्रू रिनेसेंस। अभी सोसाइटी में हमारे उतना ट्रूली आप देखेंगे मॉडर्निटी हमको दिखाई नहीं देती है, तो दैट वाज द ठीक, यस, राइट ऑन। आप समझ लो बच्चों,
मैं खुद अपना हार्डवर्क बता रही हूँ। इन नोट्स के लिए मैंने इग्नू का सपोर्ट लिया है, इग्नू के नोट्स का। बीए के जो बुक्स हैं वो उनका सपोर्ट लिया है। आई हैव डन पीएचडी इन सोशियोलॉजी, तो आई हैव माई ओन नोट्स जो मेरे प्रोफेसर्स ने पढ़ाया था, तो उनका मतलब ये एक तरीके से सबका सिनॉप्सिस है, आप ये समझ लो। आप समझ लो सिनॉप्सिस है, आप यही समझ लो, ये जो नोट्स हैं। और ये बहुत प्रीशियस है, और इनको पढ़ने के बाद देयर इज नो नीड टू स्टडी एनी बुक, एनी मटेरियल फ्रॉम माई साइड, है ना। इफ यू वॉन्ट टू स्टडी, है ना, एनीथिंग एल्स, तो यू हैव टू स्टडी ओनली NCERTs, दोज 4 बुक्स, है ना, 11th एंड 12th। बस आपको जो पढ़ना है, रीड करना है, सिर्फ उसको रीड करना है। आपको किसी मटेरियल की मार्केट में झांकने की, देखने की कुछ ज़रूरत नहीं है। ये सब काम मत करना। और स्टूडेंट्स की तरह जाएं, थोड़ा देखें क्या थोड़ा कमी है, ये स्टूडेंट्स इन्हीं में अपना टाइम वेस्ट कर देता है। कुछ नहीं, पढ़ो लिखो यहाँ से जाओ, पढ़ो लिखो यहाँ से जाओ, और घर जाके उसका रिवीजन करो, दैट्स इट। जहाँ प्रॉब्लम लगे बस मुझसे पूछो, बात खत्म, ठीक है। एकदम प्योरेस्ट फॉर्म है ये आपको, है ना। हाँ, नोट्स बनेंगे आपके, आपको डेली राइटिंग करना पड़ेगा, बट वो ज़रूरी है। सम टाइम हो सकता है हम आपको कुछ नोट्स अवेल करा दें, कभी ऐसा लगे कि चलो ओनली हमें डिस्कशन करना है, ठीक है, तो आई विल प्रोवाइड यू सम हैंड आउट्स, ठीक है, जहाँ बट मैं नीड मुझे महसूस होगी। क्योंकि सबसे बेटर वे है कि आप राइटिंग करें क्लास के अंदर, सबसे बेटर वे है, क्योंकि आप समझते हो फिर देन लिखते हो, समझते हो देन लिखते हो, तो आधी चीज़ें आपको वैसे ही वो हो जाती हैं, याद हो जाती हैं, ठीक है ना। ठीक, चलिए, सो यस, राइट डाउन। यस, यस, पैराग्राफ चेंज। Scottish Enlightenment, Scottish Enlightenment was a part of European Enlightenment, was a part of European Enlightenment. Adam Smith wrote Wealth of Nations. Adam Smith wrote Wealth of Nations in 1776 and believed free market economy, without government intervention. He also believed that free market economy should rest in the hands of self-interested individuals or capitalist. He supported capitalist system. Where the law of supply and demand
would determine prices. Would determine prices. He saw market as a positive force. He saw market as a positive force, comma, as a source of order, as a source of order, harmony, and integration in society, characterized by an invisible hand, in bracket, indirect benefits, to the society, with the operation of free market economy. That shaped the market, for labor, and goods. Yes. So, Adam Smith. The wealth of nations. स्कॉटिश फिलोसोफर है ना, हमने स्पेशली वर्ड यूज किया स्कॉटिश, मतलब एक्चुअली ही वाज फ्रॉम द स्कॉटलैंड, है ना, तो ही वाज द स्कॉटिश फिलोसोफर एंड इकोनॉमिस्ट, ठीक, एडम स्मिथ, द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, है ना, ही वाज कॉल्ड द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, मिस्टर एडम स्मिथ, है ना, लाइक हु इज द फादर ऑफ सोशियोलॉजी, मिस्टर ऑगस्ट कॉम्टे, है ना, ऑगस्टे कॉम्टे, है ना, द सेकेंड फादर ऑफ द सोशियोलॉजी ही वाज द दुर्खाइम, है ना, दुर्खाइम को हम सेकेंड फादर ऑफ द सोशियोलॉजी कहते हैं, ठीक, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे आफ्टर सम टाइम, बस फर्स्ट ऑफ ऑल एडम स्मिथ, ठीक, तो फादर ऑफ द इकोनॉमिक्स। तो सोसाइटी को दो चीजें हैं जो बदलती हैं, फर्स्ट वी हैव डिस्कस्ड ऑन द रिलीजन, ठीक, यस्टरडे हमने कल बात की थी, है ना, वेरी फर्स्ट डे भी वी टॉक्ड अबाउट कि रिलीजन जो एक ऐसी चीज है जो पूरी सोसाइटी को उसके अंदर पावर है, द रिलीजन हैज दैट पावर कि वो इस पूरी सोसाइटी को चेंज कर सकता है। आप देख लो कैसे भी, नेगेटिव और पॉजिटिव बोथ एस्पेक्ट आप देख लो, हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट है, रिलीजन का बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट है, आप देखिए कम्युनलिज्म के फॉर्मेट में, मैं गलत तो नहीं हूँ, एम आई राइट, बिल्कुल सही बात है, अगर रिलीजन को आप नेगेटिव एस्पेक्ट से हमारी कंट्री में लेते हैं तो ऑल्दो वी हैव अ थॉट ऑफ सेक्युलरिज्म, है ना, इन द प्रेम्बल, है ना, वी गिवन दैट थॉट दैट सेक्युलरिज्म, लेकिन आफ्टर दैट फिर भी हम देखते हैं कि कम्युनल वायलेंस है, कम्युनल राइट्स हैं, और बड़े से बड़े कम्युनल राइट्स हुए हैं हमारे कंट्री के अंदर। तो एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल सोसाइटी को जो इफेक्ट करता है वो है रिलीजन, सेकेंड सोसाइटी पर जो इम्पैक्ट होता है या इफेक्ट करती है दैट इज इकोनॉमी। तो अगर हमें वी फील दैट कि वी कैन नॉट चेंज द रिलीजन, सपोज दैट, तो एक्चुअली वी कैन चेंज द इकोनॉमी, ठीक है, एंड दिस कैन चेंज द सोसाइटी, पक्की बात है, श्योरली श्योरली। कैसे, मतलब आप देखिए अगर लोग ऐसे नहीं बदल रहे हैं, सपोज दैट हम चाह रहे हैं कि लोग सेक्युलर हों, हम्बल हों, सपोज दैट, है ना, फैनेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू को बिल्कुल नहीं अपनाएं, अब हम इतना एफर्ट कर रहे हैं, हमने प्रेम्बल में भी सेक्युलरिज्म दे दिया पर लोग नहीं चेंज हो रहे हैं, लोग फिर भी अड़े बैठे हैं, नहीं मैं हिंदू, मैं बेस्ट, ये मुसलमान
ये वर्स्ट, मतलब या मैं मुसलमान मैं बेस्ट, बेस्ट ही और शी इज हिंदू, तो वो बिल्कुल वर्स्ट। ये देखो आप, ये भूत नहीं उतर रहा पब्लिक के दिमाग से। कास्टिज्म, रिलीजन, आप देखो ये पैट्रियार्कल माइंडसेट। तो वी हैव अनदर वे ऑल्सो कि फिर हम इकोनॉमिकली लोगों को मूव करा दें। समझ रहे? इतना कंपटीशन ले आए सोसाइटी के अंदर, हम सारी बातें भूल जाएं। या तो एक चांस ये हो सकता है, ठीक है, लाइक हम देखिए यहाँ पर वी आर स्टडिंग टुगेदर इन दिस क्लासरूम। ही इज फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट, यू आर फ्रॉम समवेयर, यू आर फ्रॉम समवेयर, यू आर, आई एम फ्रॉम समवेयर, है ना? आपके कास्ट कुछ है, मेरी कुछ है। पता है क्यों? हमारे बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। कोई हिंदू भी है, कोई मुसलमान भी है, कोई क्रिश्चियन भी है, कोई सिख भी है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कारण पता है क्या है? एक्चुअली हम यहाँ पर किसी सोशल वर्क के लिए कलेक्टेड नहीं हैं। हमें पता है कि हमारे सामने एक ऑब्जेक्टिव है, ठीक है? मैं आपकी मेंटोर हूँ, आपकी फैकल्टी हूँ, एंड यू ऑल आर माई स्टूडेंट्स, दैट्स इट। तो आप देखिए कि जब हम, और एक्चुअली ये इकोनॉमिकल एक्टिविटी है, इकोनॉमी के हिसाब से एक्चुअली दिस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। मतलब मैं अगर घर से निकल कर आ रही हूँ तो ऑब्वियसली आई वॉन्ट टू अर्न द मनी। ये बहुत सीधी बात है, इसको कहने में कोई शेम फीलिंग नहीं है। देखो सीधी सी बात है, मैं कमाने ही तो निकल रही हूँ ना। मैं ऐसा तो नहीं सोशल वर्क करूँगी, आपकी मैं फीस नहीं लूँगी, एक बात है, सर से नहीं बोलूँगी, ऐसा तो है नहीं है, ठीक? यहाँ से मुखर्जी नगर जाऊँगी, वहाँ पे मेरा वही इकोनॉमिकल एक्टिविटी। तो मुझे पता है कि मुझे यहाँ पर किसी से कोई लेना देना नहीं है। तुम कहाँ से हो, तुम कहाँ से हो, तुम कहाँ से हो, कौन किस कास्ट का, रिलीजन का है, कौन लड़का है लड़की, मुझे कोई लेना देना नहीं है। मुझे काम करना और जाना है, ठीक है? तो आई बात समझ में? तो इसी इकोनॉमिकल एक्टिविटी के लिए देखिए मुझे कोई मतलब नहीं। लेकिन सपोज दैट अगर मैं अपनी सोसाइटी से जहाँ से आ रही हूँ, ठीक है, अब नाउ मान लीजिए मुझे कहीं रेंटल होम चाहिए, या आई वॉन्ट टू परचेज अ प्रॉपर्टी समवेयर इन दिल्ली और सम अदर सिटी, सपोज दैट। तो देखिएगा आई विल लुक आफ्टर कि अच्छा कैसी कॉलोनी है, कहीं मुस्लिम जेंट्री तो ज़्यादा नहीं है। समझिएगा, मैं मुस्लिम हूँ तो थोड़ा सा मुस्लिम जेंट्री में आई वॉन्ट टू गो कि भाई जहाँ पर मैं सेफ रहूँ, सिक्योर रहूँ। देखो आसपास लोग कैसे हैं। अगर मेरी कास्ट के, सपोज दैट मेरी एक्स कास्ट है, तो मेरी एक्स कास्ट के लोग यहाँ पर जाता है तो इट वुड बी बेटर फॉर मी, माई फैमिली, माई चिल्ड्रेन, है ना, कि दे विल बी सेफ, है ना, आई विल बी सेफ, क्योंकि भाई मैं अपने लोगों में ही रहूँगी। आप देखिए माइंड तुरंत आया, तुरंत वहाँ पर गया, है ना। बट वही चीज़ हम बार बार कह रहे हैं कि अगर पब्लिक को, जेंट्री को, पीपल को हम टोटल इकोनॉमिकली उस कंपटीशन में ला दें, तो आप देखिए व्हाट एडम स्मिथ सेड कि वो सोशल हार्मनी भी लेकर आता है। तो हार्मनी बहुत जरूरी है हमारी सोसाइटी के लिए, और हम सबके बीच में इट शुड भी होनी ही चाहिए हार्मनी। हार्मनी के बिना हम बिल्कुल जिंदा नहीं रह सकते। और राइट होते हैं, वायलेंस होते हैं, जो राइट्स हो रहे हैं, वायलेंस हो रहा है, ये क्या है? हार्मनी नहीं है, तभी तो लैक ऑफ हार्मनी, तभी तो इसीलिए एडम स्मिथ का थॉट ऐसे देखा जाए बिल्कुल क्योरेबल है, मतलब सोसाइटी के लिए बिल्कुल ठीक बात है। आप बिल्कुल फ्री मार्केट सिस्टम कर दें, और फ्री मार्केट में एकदम कंपटीशन रेस कर दें, क्रिएट कर दें, आप रेस कर दें, इसलिए क्रिएट कर दें कि पब्लिक बस उस इकोनॉमिकल एक्टिविटीज की ओर जाए। लाइक you can see the example, like we are living in Delhi, or if we go for Bangalore, somewhere Bangalore, Chennai, Calcutta, Pune, Hyderabad, some metropolitan city, Mumbai, आप देखो सेम चीजें वहां पर आपको दिख रही हैं, किसी को किसी से मतलब नहीं। आप देखो कौन कहां से, साउथ से, नॉर्थ से, वेस्ट से, आप फील करो इस चीज को। लोग कहां इन्वॉल्व है, इंडल्ज है सिर्फ इकोनॉमिकल एक्टिविटीज में। हर कोई भाग रहा है, दौड़ रहा है, कोई मतलब नहीं है बगल में कौन रह रहा है, फ्लैट में कौन रह रहा है, इधर कौन ओनर है, किसको रेंट पे देना है। लेकिन सेम चीज आप किसी स्मॉल टाउन में या स्मॉल सिटी में चले जाइए, देख लीजिए आप आराम से, जो मैं बता रही हूँ, लेक्चर दे रही हूँ, आप आराम से फील कर सकते हो। हाँ है, मतलब है मैडम, लोगों को बहुत मतलब है, क्योंकि इकोनॉमिकल एक्टिविटीज उतने हाई लेवल पे नहीं है, इंडस्ट्रीज नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है, उतने डिजिटलाइज्ड नहीं है, एक्चुअली एजुकेशन नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल। आप देखो, लेकिन वही चीज़ आपको दिल्ली में, मुंबई में, मैं तो कहूँगी दिल्ली में फिर भी कुछ ऐसा लगता है। अगर आप मुंबई जाएं तो बिल्कुल सच में कोई लेना देना नहीं। पुणे, बेंगलोर, हैदराबाद, आपको बिल्कुल फील होगा कि बिल्कुल किसी को कोई, नागपुर,
इधर मतलब कहीं कोई मतलब नहीं है किसी को, तो वही चीज आ गई ना। तो इसीलिए जरूरी है, एडम स्मिथ का थॉट बिल्कुल सही था कि हम फ्री मार्केट कर दें, और जो इनविजिबल हैंड है दैट इज द रूल ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। बस पीपल की डिमांड है, पब्लिक की डिमांड है, एंड जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, है ना, उनकी ड्यूटीज है कि उन्हें फुलफिल करें। एंड हु कैन परचेस सो परचेस, हु कैन नॉट सो कैन नॉट, कोई बात नहीं है। एंड जब फ्री मार्केट है, फ्री ट्रेड इकोनॉमी है, बैरियर फ्री, टैरिफ फ्री इकोनॉमी है, तो ऑब्वियसली उसमें बार्गेनिंग भी रेज होगी, मार्केट है ना, तो बार्गेनिंग होगी तो लोगों का जो वेलफेयर है वो अपने आप हो जाएगा। ये भी कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया, आपने शायद पढ़ा होगा, इकोनॉमी पढ़ा है, भी नहीं पढ़ा? हाँ, आप लोगों ने पढ़ा है बच्चों का इकोनॉमी पढ़ा है, उसमें आपने पढ़ा होगा एडम स्मिथ का थॉट है पूरा, इनिशियल जहाँ से कैपिटलिज्म सिस्टम आता है, देन फिर उसके अपोज में सोशलिज्म, देन मिक्स्ड, है ना, तो वो यही है, यही कॉन्सेप्ट है। तो मतलब अभी तो हम इनके कॉन्सेप्ट को प्रूफ कर रहे हैं, वी आर नॉट सेइंग कि एडम स्मिथ बिल्कुल सही और हम कैपिटलिज्म, बट देखो फिर वही बात है ना, प्रूफ्ड तो है ही है ना, इंडियन मार्केट भी कहाँ जा रही है, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी की ओर ही तो जा रही है, देख लो, टुवर्ड्स कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी पूरी तरीके से, है ना, आई बात समझ में? तो ये एडम स्मिथ बिल्कुल मतलब मुझे तो लगता है फुल प्रूफ्ड है 100%। और आज जो 1776 इन ही रोड द बुक द वेल्थ ऑफ नेशंस, एंड मुझे लगता है आज प्रेजेंटली हम बात करें, करंटली बात करें तो फुल प्रूफ्ड बुक है, करंट में भी और इंडियन इकोनॉमी में भी। और इंडियन इकोनॉमी भी टुवर्ड्स बिल्कुल आप देखें तो कैपिटलिज्म की ओर ही जा रही है। आप देख लें कहाँ है सोशलिज्म, है कहाँ? मुझे तो दिखाई नहीं देता, वेयर इज द सोशलिज्म, कहाँ है? मुझे तो पूरी तरीके से कैपिटलिज्म दिख रहा है। तभी तो बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स हैं, बिजनेसमैन्स हैं, गवर्नमेंट उनके अकॉर्डिंगली लॉ बना रही है, सारा कुछ उनके अकॉर्डिंगली कर रही है ना, तो बस। एंड रिच पर्सनस आर गेटिंग सो मच रिच, और देख लीजिए पुअर जो है वो और गरीब हो रहे हैं, आप देख लीजिए, पुअर पुअरर होते जा रहे हैं, रिच रिचर होते जा रहे हैं, आप देख लें। मतलब वी आर सेइंग कि मतलब 97% resources are consumed in the 2.5 something 3% population of the country. 97 to 98% resources are consumed in those hands, and which is very few people or persons of the population, 2.5 or something 3%, and baki rest of the public, rest of the population, that 97% population was depending on the 2.5 to 3% resources of the country. कितना बड़ा वाइडेंड गैप है, कितना डिस्क्रिमिनेशन है, आप सोचो ना। तो ये क्या है? तो हम भी तो कैपिटलिज्म की हो रही हैं, टुवर्ड्स कैपिटलिज्म हम भी तो जा रहे हैं, तो फिर हम क्यों बोलें? तो वही चीज़ है, लेकिन ये चीज़ें क्या लेकर आई? वहाँ पर मॉडर्निटी लेकर आई। आप समझ रहे हैं, सब हम फैक्टर्स बताते जा रहे हैं आपको कि किस तरीके से कैसे कैसे यूरोप में मॉडर्निटी आई। यस, राइट ऑन। नेक्स्ट हेडिंग इज impact of enlightenment, impact of enlightenment on French society. On French society. To understand the impact of enlightenment, to understand the impact of enlightenment on Europe, comma, specifically France, we need to understand what the pre-enlightenment French society, in bracket old European order, in bracket old European order, looked like. So, if you studied the history or you study the 9th class NCERT,
है ना? तो इन हिस्ट्री यू विल स्टडी द फर्स्ट टॉपिक दैट इज द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, है ना? 9th क्लास के एनसीईआरटी आप उठाओ बिल्कुल, और आप देखते हो हिस्ट्री की बुक जब बच्चों को पढ़ाते हैं तो फर्स्ट टॉपिक है, आप भी पढ़ोगे ही, आपको ही पढ़ना है हिस्ट्री के लिए, फर्स्ट टॉपिक दैट इज फ्रेंच रिवॉल्यूशन, और जिसे हम ओल्ड यूरोपियन ऑर्डर कह रहे हैं। तो देयर वर सम 3 states. What were the 3 states? Noblers, yes. Clergy. First that is beta clergy, है ना? Yes, first the clergy, है ना? Second that is nobilities, है ना? Nobilities. Nobilities. And third one that is commoners, है ना? That is commoners, nobilities, the clergy and commoners, ठीक है? अब आपको पता है इसमें जो फर्स्ट स्टेट है ऑर्डर में, है ना? बेसिकली दीज आर 3 ऑर्डर्स ऑफ द पीपल ऑफ द सोसाइटी, कुछ भी कह सकते हो आप अपने तरीके से, स्टेजेस, स्टेप्स, कुछ भी कह लीजिए, ऑर्डर्स, सिस्टम, एस्टेट्स, है ना? ठीक, फर्स्ट वन दैट इज क्लर्जी, है ना? हु हैविंग ऑल द राइट्स, जिसका सारे राइट्स थे, है ना? नोबिलिटीज उनके नीचे, आप एक तरीके से कह लीजिए उनके ऑफिसर्स, उनके मिनिस्टर्स, ऐसे मतलब समझने के लिए फिलहाल बता रही हूँ, है ना? वो सारे कॉमनर्स जिसमें बिल्कुल आम जनता, आम लोग, कॉमन पीपल, नॉर्मल पीपल, मतलब हमारे जैसे लोग मान लीजिए, और उसमें भी सबसे ज्यादा जो कंडीशंस खराब वो विमेन के, है ना? तो दैट्स व्हाई हम ये कहते हैं कि व्हेन वी स्टडी इंडियन सोसाइटी, तो हम कहते हैं कि इंडिया में अगर हम विमेन्स के कंडीशन देखें, उसको कंपेयर करें, तो इन द वैदिक एरा अगर हम बात करें तो दैट वाज द गोल्डन पीरियड फॉर द विमेन, दैट वाज द गोल्डन पीरियड ऑफ द विमेन, मतलब ऑल द राइट्स दे डिजर्व्ड, सब राइट्स वो डिजर्व करते थे, है ना? तो दे कुड रिमैरी, है ना? एजुकेटेड, है ना? दे कुड बी वॉरियर्स, दे कुड बी टीचर्स, है ना? एवरीथिंग, अपाला, गार्गी, मैत्रेयी, लोपामुद्रा वर द एक्सेट्रा वर द विमेन। आप देखिए विमेन्स थे, तो मतलब they enjoyed the equal status with the men, एक तरीके से, तो everything was there, मतलब सब कुछ था। हम बल्कि अगर कंपेयर करें उस यूरोपियन सोसाइटी से जिसको मिडिल एज कह रहे हैं, मिडिल एरा कह रहे हैं, है ना? तो अगर आप उसको रेनेसेंस से बिफोर हम बात कर रहे हैं अगर पहले, तो मतलब हम बोल रहे हैं कि विमेन को बहुत बहुत स्ट्रगल करना पड़ा, बट उस हिसाब से इंडिया के अंदर बिल्कुल अपोजिट कंडीशन हो गई ना वैदिक एरा में, मतलब दे वर एंजॉइंग द इक्वल स्टेटस, और अभी ना मतलब हमको हर दिन स्ट्रगल करना पड़ रहा है इक्वल स्टेटस के लिए, मतलब अगर साथ में भी बैठना तो हमें लग रहा है बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा है ना, तो वो चीज़ देखिए। लेकिन खैर जो भी है, अब जो भी हुआ सो हुआ, हमारे यहाँ पर बहुत इन्वेजन्स भी आए, सब कुछ आए, फिर मुगल्स आए तो कंडीशंस और भी ख़राब हुए, उस तरीके से चीज़ें रही। तो यहाँ पर भी सेम कंडीशन थी, जो कॉमनर्स में सबसे बैड कंडीशन थी वो थी विमेन की, और सेम है कि जैसे हर जगह पर विमेन ने स्ट्रगल किया, अपनी वॉइस को रेस किया, यहाँ पर अदर कॉमन पीपल ने तो किया, बट यहाँ पर भी जो थर्ड वाला स्टेज है कॉमनर्स में, यहाँ पर भी विमेन अरोज देयर वॉइसेस, इन्होंने अपनी वॉइसेस को अरोज किया, उठाया, और बहुत बड़ा ये मतलब एक काम था कि जिसकी वजह से, अच्छा फिर यही चीज़ें नहीं थी एक्चुअली, जैसे हमारे यहाँ बोलते हैं कि किंग थे, उनका ध्यान नहीं था, कुछ ऐसे किंग हुए, हमारे यहाँ बोलते हैं मुगल्स में आफ्टर अकबर स्पेसिफिकली हम बोलते हैं, तो बहुत चीज़ें हुई, बहुत कोलैप्स हुई चीज़ें, सेम एज वहाँ पर था। तो आपने पढ़ा होगा वहाँ के इन्फ्लेशन के बारे में, तो इन्फ्लेशन बहुत था, बहुत ज़्यादा, मतलब एक ब्रेड, जो ब्रेड है मतलब वो बहुत एक्सपेंसिव हो गई थी, तो मतलब जैसे अपनी कंट्री में अगर हम बोले कि हम चपाती नहीं खा पा रहे हैं, जैसे हम कहते हैं दाल रोटी नहीं खा पा रहे हैं, तो मतलब कुछ बचता ही नहीं है फिर।
अगर हम रोटी नहीं खा पा रहे, सपोज दैट दाल रोटी और छोड़िए, तो मतलब क्या बचता हमारी सोसाइटी के अंदर? सेम कंडीशन वाज दैट कि वहाँ पर मतलब बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गई चीज़ें। एक ब्रेड के बारे में बोला गया कि मतलब ब्रेड भी पब्लिक खरीद कर नहीं खा पा रही थी, हालात इतने ज़्यादा खराब थे। लुई 16 के बारे में आप पढ़ते हैं, है ना? लुई 16 के बारे में जानते हैं ना? तो वही किंग था, उस बिल्कुल मनमाना बिहेवियर था, कोई पब्लिक के ऊपर उसका अटेंशन नहीं था, कोई ध्यान नहीं था, मतलब एकदम इन्फ्लेशन हो रहा है। तो लुई 16 के बारे में बताते हैं। फिर नेपोलियंस टाइप वही बताया जाता है कि लोग आते हैं, मतलब वी आर नॉट स्टडीइंग हिस्ट्री, पर सोशलॉजी में जितना बताना है मेन मैं उतना बता रही हूँ, वरना तो ये पूरा हिस्ट्री का टॉपिक है, तो उसमें हम इतना नहीं एंटर कर रहे हैं। हाँ, बट जितना हमें बताना है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में हम लोग बात करेंगे, तो उसमें 3 स्टेट्स के बारे में वी हैव टू टॉक, है ना? तो बस वो सारी चीज़ें थी, है ना? और इस तरीके से जो कॉमनर्स थे फाइनली उन्होंने प्रोटेस्ट किया, और प्रोटेस्ट किया, उन्होंने बोला कि वी वांट आवर राइट्स, आर फंडामेंटल राइट्स, हमें हमारे फंडामेंटल राइट्स चाहिए। राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू फ्रीडम और लिबर्टी, राइट टू लिविंग, है ना? हमें डिग्निफाइड लाइफ, तो हमें ये सारे राइट्स चाहिए, वही राइट्स जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमें दिए गए, है ना? तो वो सारे राइट्स हमें चाहिए। और इन लोगों ने बहुत एक ड्रास्टिकली एक रिवॉल्यूशन किया, वही फिर जिसे हम आगे जाकर फ्रेंच रिवॉल्यूशन कहते हैं, वही है द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, है ना? लेकिन फिर वही बात है कि क्या फ्रेंच रिवॉल्यूशन सडन होता है? नहीं, उसके पीछे हम ऊपर से इतनी स्टोरी पढ़कर आए, रिनाइसेंस, है ना, है ना, ये सारी चीज़ें होती है, मॉडर्निटी के ऊपर टॉक होते हैं, है ना? और वही जब फाइनली फ्रेंच रिवॉल्यूशन होता है, मतलब 1789, इन द ईयर ऑफ 1789, वहाँ से हम बोलते हैं कि फाइनली एमर्जेंस ऑफ सोशलॉजी। जब लोग लिबर्टी के ऊपर बात करते हैं, राइट्स के ऊपर बात करते हैं, विमेन राइट्स के ऊपर बात करते हैं, इक्वालिटी के ऊपर बात करते हैं, इक्वालिटी स्पेशली बिफोर लॉ, तो वहाँ से हम बोलते हैं कि डिस्कशंस होना शुरू होते हैं, ठीक है? सो राइट डाउन पैराग्राफ चेंज। वेल द ओल्ड यूरोपियन ऑर्डर was stratified on the basis of states, the system of stratification in feudal European societies stratification in feudal European societies was based on status, comma, privileges and restrictions, wherein higher status and privileges was enjoyed by people who belonged to first and second state, they were called the clergy, in bracket, people who worked in the church, in bracket, people who worked in the church,
and the nobility and the nobility in bracket, the king and queen, the king and queen, nobles of the sword, comma, princes of royal blood, princes of royal blood, and the restrictions were imposed and the restrictions were imposed on people belonging to third estate, and they were called the commoners or everyone else. And they were called the commoners and everyone else. In bracket includes lawyers, doctors, businessmen, merchants, shopkeepers, peasants, etc. And they consumed 97% of the population. And they consumed 97% of population. इतनी बड़ी पॉपुलेशन 97% से जो मैं कंडीशन अभी इंडियन सोसाइटी में बता रही हूँ भाई 97% हमारे यहाँ भी कॉमनर्स ही हैं. वी कैन से कॉमनर्स, वही हम लोग ही हैं यहाँ पर. वही जो डॉक्टर्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, लॉयर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, हम ही आप बिजनेसमैन हैं, वही मर्चेंट्स, ऑल पेजेंट्स हैं हम में से, तो वही शॉपकीपर्स हैं. तो देख लीजिए सेम कंडीशन अभी हमारे साथ भी है. तो 97% हम भी हैं प्योर, और 3% उन्हीं की तरह, वो भी इंक्लूडेड 3% मतलब 1% ऑफ दैट क्लर्जी एंड 2% इन द नोबिलिटीज़. तो हमारे यहाँ भी वही है, क्लर्जी एंड नोबिलिटीज़ टाइप के लोग हैं जो 3% ऑफ द पॉपुलेशन है. ठीक है ना. अब प्रॉब्लम वही है, क्या फील करते हो आप लोग, मुझे बताना, मेरे साथ डिस्कस करना आप लोग. व्हाट डू यू फील अबाउट दिस टाइप ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन स्टेट्स? कंपैरिजन इंडियन सोसाइटी से करना है, यू हैव टू टेक द कंपैरिजन विथ इंडियन सोसाइटी. तो बताइए आप क्या फील करते हो बच्चों, बताइए क्या मतलब रिवॉल्यूशन तो होगा, ये बात तो पक्की है ना. आप क्या फील करते हो बताओ. अगर इसी तरीके का स्ट्रेटिफिकेशन है या स्टेट्स हैं, ठीक है, हमारी कंट्री में क्लर्जी नहीं है, नोबिलिटीज़ नहीं है, कॉमनर्स नहीं है, पर लगभग वी आर लिविंग विद द सेम कंडीशन एक्चुअली. तो फिर क्या फील करते हैं आप? आपको लगता है कोई एक रिनाइसेंस एक इंडिया में भी शायद फिर से होगा? मतलब मुझे तो ऐसा लगता है, आई फील दैट, मुझे ऐसा लगता है. और 10-15-20 साल रुके, बट ड्रास्टिक चेंज होगा इंडियन सोसाइटी में भी. एक्चुअली वो ट्रूली रिनाइसेंस होगा, ट्रूली मॉडर्निटी होगी, क्योंकि हम फील कर रहे हैं एक तरीके से उस सफोकेशन को, कि जहाँ पर हम लोग ठीक से जी भी नहीं पा रहे और मर भी नहीं पा रहे हैं. अगर आप ठीक से एक मिडिल क्लास फैमिली की कंडीशन को देखें इंडियन सोसाइटी के अंदर, तो बहुत बुरे हालात हैं हम लोगों के. आप ठीक से देखिएगा, बहुत बुरे हालात हैं. हम कहाँ जाएं, मतलब हम ना तो जी पा रहे हैं ना मर पा रहे हैं.
मर नहीं सकते क्योंकि घर में बाल बच्चे हैं, फैमिली है। जीने के लिए वी नीड मनी, जो हम अर्न नहीं कर पा रहे हैं, है ना। एबिलिटी है, स्किल है, लेकिन उसके बाद भी वी डोंट हैव एनी गुड जॉब्स। देखिए स्ट्रेंज, अनएम्प्लॉयमेंट है कंट्री के अंदर, पॉवर्टी है, डिस्क्रिमिनेशन है, आप देखिए करप्शन है, ब्राइबरी है हमारे कंट्री के अंदर। फील करते हैं हम लोग इन चीज़ों को, और देख लीजिए वही हालात है ना। तो क्या फील करते हैं आप इंडियन सोसाइटी के बारे में, इसी चीज़ को अगर आप कंपेयर करें? बताओ, सोचो, 2 मिनट सोचो आराम से, फिर बताओ। अरे आप लोग पानी वगैरह नहीं पीते हो? पानी पीते ही नहीं हो क्या? पीते हो ना, पीते। अरे नहीं नहीं, पानी वानी पीते रहा करो तुम लोग। हाँ, ड्रिंकिंग वाटर इज अ वेरी गुड हैबिट, और स्टूडेंट्स के लिए तो मतलब बहुत अच्छा है। तो बीच बीच में 1-2 घूंट सिप कर लिया, 1-2 सिप कर लिया, फिर पढ़ते रहे, तो उसमें क्या थोड़ा मन भी लगा रहता है। वरना टीचर तो लेक्चर दे रहा है कंटिन्यूसली, वो तो एनर्जी में है, बट आपकी एनर्जी फिर थोड़ी डाउन होती है। तो उसके लिए पानी वानी और सम ल्यूक वार्म वाटर, तो ये तो इट हेल्प्स यू सो मच। मतलब ये तो बहुत अच्छा आपके हेल्थ के लिए, क्योंकि इतनी बड़ी प्रेपरेशन आपको पता है ना, आप विदाउट एक गुड हेल्थ नहीं कर सकते हो। बहुत स्ट्रगल है अभी इसमें, अभी तो ये इनिशियल स्टेज है। तो उसके लिए आपको एक अच्छी हेल्थ चाहिए, अच्छा फूडिंग चाहिए, है ना, अच्छी मॉर्निंग वॉक चाहिए, योगा चाहिए, कुछ मेडिटेशन चाहिए, क्योंकि हेडेक होना, ये सारी चीज़ें बहुत कॉमन प्रॉब्लम है यहाँ बच्चों की। डीमोटिवेटेड सब फील करना हर 2-4 दिन में, नहीं होता ये चीज़, होती ना, क्या होगा क्या नहीं होगा, चॉइस सही है नहीं है, ऑप्शनल ठीक लिया नहीं लिया। ये आपके साथ कंडीशन नहीं है, सबके साथ है। तो ये डाउटफुल कंडीशंस आते रहेंगे आपके लिए, है ना। तो इनसे सबसे निकलने का एक ही आपके पास वो है, सबसे अच्छा जो रास्ता है वे है कि आप अच्छा मेडिटेशन करें, कुछ योगा करें, मॉर्निंग वॉक करके आए, अच्छा हेल्दी फूड लें, फ्रेश रहें, और हमेशा अपने आप को मोटिवेटेड रखें, पॉजिटिव रहें। जो होगा अच्छा होगा, है ना। बस मेरे साथ जो होगा अच्छा होगा, बस मेरा ईश्वर, मेरे पेरेंट्स, उनकी ब्लेसिंग्स मेरे साथ हैं। तो इसी मोटिवेशन के साथ आप पढ़ पाओगे। मुझे पता है ना, अभी तो शुरू में बड़ा एनर्जी फील करते हैं शुरू में, बाद में देखिएगा 1-2 महीने होने दीजिए, जब बर्डन बढ़ता जाएगा, टॉपिक 4-5 हो जाएंगे सोशलॉजी के, उधर से जीएस का बर्डन, तो वो चीज़ फिर हम फील करते हैं, ठीक है। हाँ, तो बताओ, तो आपको लगता है कि कुछ ऐसे कॉजेस तब भी रहे होंगे यूरोप में, स्पेसिफिकली जैसे हम फ्रांस की बात कर रहे हैं, फ्रांस की बात करनी है उसमें मेनली, और इंग्लैंड में भी ऐसे ही कुछ हुआ, वहाँ हमने कल पढ़ा इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, फिर देन फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789, एंड देन मॉडर्निटी केम इन यूरोप, बात खत्म हो जाती है, एंड इमर्जेंस ऑफ सोशलॉजी। तो आप क्या बोलना चाहोगे? आपको लगता है हाँ, जब मैडम इतना सारा स्ट्रगल होगा, इस तरीके का के इनइक्वालिटीज़ होंगे, डिस्क्रिमिनेशंस होंगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि पब्लिक में कुछ ऐसे, जिन्हें हम इंटेलेक्चुअल्स कह रहे हैं, तो ऐसे इंटेलेक्चुअल लोग होंगे देखिएगा जो उसको प्रोटेस्ट करेंगे। हाँ, कुछ तो, कोई तो होगा जो उसके ऊपर बात करेगा, मैं नहीं करूँ, आप नहीं करो, आप नहीं करो, आप नहीं करो। आप देखिएगा बहुत कम्युनल वायलेंस होंगे, हाँ राइट्स होंगे। आप देखना विमेन के साथ कुछ ऐसी चीज़ें हैं, बहुत इंसिडेंट्स होंगे, मैं नहीं बोलूँ, आप नहीं बोलो, मत बोलो, आप भी मत बोलो, मत बोलो। पर देखिएगा सोसाइटी में कोई ना कोई पर्सन होगा जो वॉइस रेस करेगा, पक्के में, पक्के में। फिर वो बात दूसरी कि लोग उसके साथ एड ऑन हो जाए, जैसे कि लाइक लोकपाल बिल। सो अन्ना हजारे, मिस्टर अन्ना हजारे, ही रेज्ड हिज वॉइस, तो फिर उनके साथ आप देखिए इंक्लूड हुए फिर अरविंद केजरीवाल, है ना, तो ये सब गौरव चड्ढा, ये सब लोग, है ना, ये सब ऐड हुए, किरण बेदी ऐड हुए। तो कोई ना कोई तो, किसी ना किसी ने तो बोला ना उस करप्शन के अपोज में फाइनली, तो कोई ना कोई तो बात करेगा। निर्भया केस हुआ, कितने लोगों ने प्रोटेस्ट किया इसी दिल्ली के अंदर एट द जंतर मंतर, ज़बरदस्त प्रोटेस्ट हुआ इतने विंटर डेज में, मतलब जिसे हम कहते हैं बहुत हैवी विंटर डेज थे वो, उस समय पे प्रोटेस्ट हुआ। तो फाइनली एक निर्भया एक्ट, वी गॉट द निर्भया एक्ट, हमें मिला ना, एक निर्भया एक्ट मिला, है ना। फिर हाँ हाँ, और क्या, मतलब हाँ बिल्कुल, फंड भी मिला, बिल्कुल निर्भया फंड भी जिसे हम कहते हैं। यूपीएससी ने बहुत बार क्वेश्चन भी पूछा है, खासतौर से गर्ल्स से, विमेन से, कि टेल मी समथिंग अबाउट निर्भया फंड, तो वही फंड भी दिया। पॉक्सो भी आया,
जब बच्चों के साथ पता चला, माइनर ऐसे केसेस हुए, उसके बाद ही तो एक पॉक्सो भी आया, प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट भी आया। तो हमने बोला ना कोई तो होता है जो सोसाइटी में वॉइस रेस करता है ना। कुछ ऐसे कॉमनर्स होते हैं जो अपने डेली लाइफ में रूटीन में बहुत बिजी रहते हैं, बट फिर भी उन्हीं में से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने वॉइस को रेस करते हैं, एंड दे आर कॉल्ड द इंटेलेक्चुअल्स, है ना। तो वही चीज उस वक्त, दैट कंडीशन हैपेंड इन द यूरोप, स्पेशली इन द फ्रांस। तो सम पीपल दे रेस्ड देयर वॉइसेस, उन्होंने अपने वॉइस को रेस किया और बोला कि हर तरीके से वी वांट इकोनॉमिकल चेंजेस, वी वांट फाइनेंशियल चेंजेस, वी वांट पॉलिटिकल चेंजेस, वी वांट सोशल चेंजेस, है ना। हम हर तरीके के चेंजेस चाहते हैं अपनी सोसाइटी के अंदर। और इसी के लिए हमने क्या बोला, वो रिनाइसेंस तो हो ही रहा था। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन वॉज केम इन इंग्लैंड इन 1760, और यही सारे जो चैन हैं, ठीक है ना, तो यही सारा चैन बनते बनते फाइनली, है ना, वी फाउंड दैट फ्रेंच रिवॉल्यूशन इन 1789। और देन उसके बाद तो पूरी वो चैन बनती चली गई। उसी बीच में एडम स्मिथ वॉज केम, ही रोट द बुक, है ना, उसी बीच में 1776 1789 ही रोट द बुक द वेल्थ ऑफ नेशंस। तो सारे जितने इंसिडेंट्स थे वो सारे के सारे एक साथ हुए। और देन उसके बाद फिर 18th सेंचुरी, देन फिर कार्ल मार्क्स वॉज केम, है ना, कार्ल मार्क्स बॉन्ड और ये सब चीज़ें, मतलब फिर वो कहते हैं ना थिंकर्स, फिर तो वो एक कंटिन्यूस फॉर्म में एक सिलसिला था जो शुरू ही हो गया। फिर तो वॉइसेस रेज हुए। फिर इंडिया जैसे कंट्रीज़ भी थे वो भी फिर अपने वॉइस रेज करे, उधर चाइना में भी अपने तरीके के रिवॉल्यूशन, मतलब सब जगह फिर हम क्या देखते हैं, रिवॉल्यूशन हमको दिखाई देते हैं। इंडिया के अंदर भी लोग आते हैं, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन रॉय, तो ये सब देख के समझ के फिर वो भी अपनी वॉइसेस को रेस करते हैं। तो फिर तो बोलते हैं पूरे वर्ल्ड में, अराउंड द वर्ल्ड, फिर हम देखते हैं कि एक रिनाइसेंस का, एक मॉडर्निटी का जो एक वो है, एक चैन है जो एक वो फिर वो स्टार्ट हो जाती है। लेकिन बट उसे लेकर कौन आता है, यूरोप, स्पेशली फ्रांस। यस, आई डोंट। द कॉजेज ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन, हेडिंग, दिस इज द हेडिंग, द कॉजेज ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन। Yes, Shahryar. Indian law made in favor of above classes. Yes. Police also favor high class while low class feel alienation. हाँ, स्टेट नहीं कर सकते ना इसे, ऐसा बिल्कुल स्टेट नहीं कर सकते शहरयार कि पुलिस ऑल्सो फेवर हाई क्लास। हाँ, वो तो है ही है ना, एंड लो क्लास फील एलिनेशन, बट वही बात है ना, स्टेटमेंट ऐसा दे नहीं सकते। हाँ, ऊपर वाला पॉइंट ठीक है, ठीक, राइट ऑन। First, this is the subheading. First, economic causes. Economic causes. Write down. First and second state paid no taxes. First and second state paid no taxes. And all the taxes were borne, by third state. Second point, this was the first point. Heavy layout of soldiers, and system of market which restricted trade. Third point, increased debt due to 7 years war, and American Revolution, famine,
comma famine slash poor harvest. Second subheading is political causes. Political causes. First, absolutism. Absolutism. First point. Second, undemocratic states. Undemocratic states. Third, nepotism. Nepotism. And fourth, no freedom to common man. No freedom to common man. Third subheading is intellectual causes. First, age of reason. Intellectual causes. First, age of reason. Second, growth of new ideas. Growth of new ideas as to how the state should run led to summon of the States General. States General. जनरल, ठीक है, ठीक. सो स्टॉप. बाकी इसमें हम लोग कल करेंगे, यहाँ तक है ना. कल आपका ये फर्स्ट टॉपिक दैट विल बी फिनिश टुमारो. हाँ, यस, एब्सोल्यूटिज्म को लाइक यूरोप के अंदर, यूरोप के जितने भी वेस्टर्न यूरोप का पार्ट था, वहाँ पर ये बोला जाता था, हम एब्सोल्यूट वर्ड कहाँ इस्तेमाल करते हैं, वेयर वी यूज द एब्सोल्यूट वर्ड. एकदम चीज करेक्ट हो, है ना, एब्सोल्यूट, वी से एब्सोल्यूट. तो उन्हें लगता था कि जो एब्सोल्यूटिज्म है वो सिर्फ क्लर्जीज में है. मैं बताती हूँ उसको और एग्जाम्पल देके. हमने बोला ना क्लर्जीज मीन्स द पीपल ऑफ द चर्च हु वर्कड इन द चर्च, है ना. तो दे सेड दैट वी आर एब्सोल्यूट पीपल, ठीक है, टू रन द कंट्री, टू रन द सोसाइटी, एंड देयर इज नो नीड फॉर द एनी लॉ. मतलब जैसे कहते ना, मैंने बोला, मैंने जो कह दिया बस वो ही है एब्सोल्यूट, है ना. तो हमारी कंट्री में भी कुछ टाइम तक ये सिस्टम हुआ, लाइक कैसे कि हमारे यहाँ के जितने भी प्रीस्ट हैं, मतलब वही पंडित हैं आप कह लें, है ना. जैसे कि अभी भी अगर हम एक बात करें, मतलब इसे कोई अनदर सेंस में नहीं लेगा, ऑनलाइन ऑफलाइन स्टूडेंट्स में, है ना, डोंट टेक इट मतलब एनी अदर सेंस, कि जैसे आज भी हम देखते हैं मुस्लिम कम्युनिटी में सम टाइम की, मतलब जैसे बोलते ना फतवा, लाइक फतवा पब्लिश कर दिया, तो दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूटिज्म, कि हमने जो कहा वो ही हमारी सोसाइटी के लोगों को करना होगा. तो इस तरीके की चीज़ें वहाँ पर क्लर्जीज में थी, तो उनका कहना होता था, और क्लर्जीज के बाद फिर वो नोबिलिटीज तक आती थी. तो कॉमन पीपल को उन सारी बातों को टॉलरेट करना ही पड़ता था. तो उसके अपोज में भी वहाँ पर इंटेलेक्चुअल्स ने बात की. जैसे कि उन्हें लगता था कि सपोज दैट अगर दिस इज द चर्च और इसके अराउंड जितनी भी प्रॉपर्टी है, लैंड है, वो सब हमारी है, तो बाकी के जितने नोबिलिटीज स्टेट के पीपल है या फिर कॉमनर्स हैं, तो उन्हें ये एक्सेप्ट करना होगा. ओके, मतलब क्योंकि क्लर्जीज मतलब चर्च कह रहे हैं, तो चर्च के लोग कह रहे हैं, हाँ तो इट इज़ ओके. लेकिन रिसोर्सेज तो पूरी पब्लिक के है ना. मंदिर एक जगह है, एक सेंटर पॉइंट पे है, उसके आसपास के रिसोर्सेज तो पब्लिक के लिए ना.
और दैट्स वाई वी से कि जब हम कहते हैं कि डिफरेंस, कमेंट ऑन डिफरेंस बिटवीन द वेस्टर्न सेक्युलरिज्म एंड इंडियन सेक्युलरिज्म, तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन वेस्टर्न सेक्युलरिज्म एंड इंडियन सेक्युलरिज्म. This was a question in the 2019 or 20s paper, I think, सोसाइटी में, GS1 में. तो वहाँ पर पूछा गया है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेस्टर्न सेक्युलरिज्म एंड इंडियन सेक्युलरिज्म. तो हमारे यहाँ देखिए इस तरीके के जो एब्सोल्यूटिज्म है उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया है. हमारे यहाँ पर कौन बात कर रहा है? कॉन्स्टिट्यूशन, लॉ. लॉ के अकॉर्डिंगली जो करेक्ट है कॉन्स्टिट्यूशन के, वो सही है. लाइक यू कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ that Babri mosque and Ayodhya temple, राम मंदिर टेम्पल. तो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया एंड सारी पब्लिक ने उससे एक्सेप्ट किया, सारी कम्युनिटीज ने, है ना, बहुत ऑनर के साथ, चाहे वो मुस्लिम कम्युनिटी थी हमारी, चाहे वो हमारी हिंदू कम्युनिटी के लोग हैं. ठीक है, तो हमारे यहाँ उस तरीके का जो एब्सोल्यूटिज्म है वो नहीं है, है ना. तो दैट इज कॉल्ड. मैं कल बात करती इसके ऊपर, मतलब एक्चुअली कल ये वर्ड आता, कोई बात नहीं, लाडली ने पूछा तो आज ही थोड़ा बता दिया, कल और भी बात हो जाएगी इसके ऊपर. ठीक है ना, तो ये वर्ड आता. ठीक, क्लियर है? ठीक, चलिए. सो बाकी इसमें कल करते हैं, और कल आपका हो सकता है कि फर्स्ट टॉपिक से फिनिश हो जाए. वी विल स्टार्ट आवर सेकेंड टॉपिक, और नहीं तो फिर डे आफ्टर टुमारो. ठीक है, नोट्स आपको अब जो बना दिए गए हैं, आपको कहीं कुछ नहीं देखना है, बस इसको रीड आउट करना है बस. हाँ, हम लोग इसके ऊपर कल बात करेंगे भाई, कल ही आएगा आगे, ये सारी चीज़ें भी आएंगी, ये खत्म नहीं हुए हैं. एक तरीके से अभी इसको शुरू कर रहे हैं, ऐसे मान लो. जैसे कल मॉडर्निटी आपने पूछा ना मॉर्निंग में आकर, मैडम मॉडर्निटी तो अभी और चलेगा ना, तो मैंने क्या बोला अभी तो पूरी बात होगी उसके ऊपर ना, सारी चीज़ों पर बात करेंगे हम लोग कल, सब पर एक एक वर्ड के ऊपर ना. ठीक, हाँ, दिलैक्श ना, दिलैक्श. सो यू अंडरस्टूड समथिंग, समझ में आया कुछ? About the book. अच्छा, about the book, you can take the Gupta Sharma's book if you want to take. मतलब yes, मैं बंद कर दूँ.